Hello, friends. Namaskar. A very warm welcome. And in the continuing series of taking up very important themes which had been discussed through different magazines which are showcasing India's developmental process. Today, like the previous one, if you see, the theme that we are taking up is artificial intelligence. Ashik, if I ask you, what are the three key areas of artificial intelligence, and three more key areas will be shared by Mansi. Three key areas of artificial intelligence. Yeah, three. If I say artificial intelligence, there must be themes coming up in your mind. What are the three broad themes of artificial intelligence in your mind? From the developmental perspective, Indian perspective, what? Developmental purpose. Yes. So artificial intelligence can be used, for example, in governance, healthcare, Okay, one is education, governance. One is defense. healthcare Yes. is itself. Healthcare itself will coming under a broad theme. So one is governance. Other is Defense. okay, defense. Second, Third, how about services, sir? okay. Three more themes, Mansi. So he stated, can he repeat the themes? Healthcare, He defense, said defense. He said defense. healthcare, Healthcare will be coming under services. What else? Sorry. education would also be services. Yeah, education. So healthcare and education, whatever you're talking, they all will be coming under public services. So disaster management. Okay. So six key areas, if I say, one is generative AI, one is cyber security, one is governance, one is media, public services and industry. I repeat, cyber security, governance, media, public services, industry, and generative AI. So a very important theme. Ashik, what is India's vision when we speak about the global good, or the AI landscape? When we talk about the economic landscape, is poised for a tectonic shift by the increasing integration of AI. हाँ, सो IMF इस बारे में क्या कहता है अपनी रिपोर्ट में? So IMF focuses on services that can be given by the AI, but it has to be very broad and it should be inclusive. It will focus on skilling of the Indians as well as skilling of the workforce will be needed in longer run. And India present a very wonderful area where the people have this required skill for the Okay, AI. so you are saying the government's proactive stance for applying AI technologies in different areas, as you just said in the beginning. AI adoption rates, sir. Yeah, That is. education, agriculture, smart cities, infrastructure, and so on. And AI-centric future decisions are being made. Integration is happening of AI into different areas. Linguistic domain में भी ऐसा हो रहा है. Digital India का भाषिनी, if I say भाषिनी represents a significant stride in that regard. So adoption of AI is very important. Responsible AI for social empowerment. Responsible AI for social empowerment raise. That is the kind of idea we are putting up. So when we say India's vision, Osik, India's vision for the world as far as AI is concerned, India's vision. So AI तो decades से पहले जाना गया था. There will be a kind of a mindset. Landscape has shifted. क्योंकि अब GPU आ गए हैं बहुत सारे. Increased AI computing power बढ़ गई है. Emergence of large language models हो गए हैं. Deep Mind, Open AI, ये अब Meta, Google, Microsoft, Tesla, they are bringing it to the mainstream. What is India's approach and articulation, Mansi? So when it comes to role of AI in different spheres and themes that we've talked about, so India is talking about how it can enable in terms of enhancing the productivity and not replacing the jobs. So that is one sphere in terms of last mile connectivity or reach or delivery of again public services. Okay, yeah, that's a good point. What about digital economy? How do you compare digital economy with the GDP growth? Is So GDP growth much more than digital economic growth, or digital economic growth is more than the GDP growth? the GDP growth is more than the. Are you sure? As far as I see the data, Numbers like GDP growth no, rate. not in numbers. When we say about growth, it is not never about numbers. It is about Percentage. facts.
Percentage growth, percentage is numbers only. So Yeah, growth rate would be then, sir, AI would be growing at a much faster rate compared to the that's what I'm GDP. saying. Yes. Mhm. Hmm. Ashik, what we are doing for talent development as far as AI is concerned? Talent development के लिए हम क्या कर रहे हैं? So talent development in AI, we have a mission, AI mission in India, which focusing on recruiting of the important upgrading of the skills as well as incorporating several key industry. For example, Microsoft, which is focusing on 15 lakh jobs in AI, as well as with regard to trade, we are focusing much more on, for example, ECTA for Liechtenstein, Switzerland, etc. They are investing in the AI field. And other than that, so regarding AI, we are rationalizing the laws, for example, IT laws that will provide data governance system in India. For example, Data Protection Act Mansi, 2023. we had GPAI Summit 2023 in New Delhi. GPAI. What is the full form of that? The GPAI. Yeah, GPAI Summit was there in 2023 in New Delhi. It was a landmark. It was a landmark summit in the, I what you can't can say, recall what what is can be GP. A would what AI is would be artificial intelligence. what about GP? The G can be generative, but not aware. Ashik? I was guessing. So global partnership Yes, for global artificial partnership intelligence on artificial is a very intelligence. important uh, convention or even talk which was going for the AI, responsible AI for the future. Okay, good. So when we are speaking about Indian governance and public services, because we have agreed to the fact that there is a transformative potential of AI. Domestic adoption is also taking place at the same time through different ways. AI for all, सबका साथ सबका विकास जैसे हम बोलते हैं. Large database we have to create, we have to utilize, we have to use it for effective development and implementation for policies. Digital Personal Data Protection Act आ रहा है. Digital Data or Digital Personal Data Protection Act. So my question is that the government of India is having flagship initiatives. For example, National Program on Artificial Intelligence, NPAI. What is one key? What are actually there are 4 key interventions as far as AI ecosystem is concerned with respect to NPAI. What are those 4 key interventions, Ashik? So first should be regulation of the AI and data collection regulation algorithm. One is So, data collection and all that. That is done through National Data Management Office. yeah, National Data Management Institution. 4 institutions is there. I cannot recall the exact name. Mansi, what are the 4 key interventions? So one can be the indigenous development of again the AI models in India. Like we have One is, as I just said, one is National Data Management Office. Hmm. Another is National Center on AI. That is one core part, National Center. And then 2 areas, skilling for AI and responsible AI. This is India's approach. स्किलिंग भी करेंगे, रिस्पॉन्सिबल भी करेंगे, सेंटर भी होगा, डेटा भी. इसी के थ्रू हम सारा बात करते हैं. कौशिक, व्हाट इज उमंग? Umang. Umang. Umang is So, unified mobile yes, application for new age governance. yes. What is unified mobile application for new age governance? Give me an illustration. For example, sir, it can redress the problems of the people. One has to just log into it and complain. Then it can also offer sir various type of services to people. So it promotes citizen participation in the governance. मानसी, उमंग की तरह एक और एग्जांपल बताओ. So can be DigiLocker. वेरी गुड. डिजी लॉकर, वो तो लॉकर है, वो तो सिर्फ mygov.in. हाँ वो भी है, और ऊपर से और सिंपल बोलिए, Library would be there. लाइक डिजी यात्रा, DigiYatra or जो DigiLocker. आपको ईज कर रही है एयरपोर्ट में, सिक्योरिटी चेक में, बोर्डिंग में, सीमलेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. कॉमन सर्विस सेंटर हो सकते सर. डिजी लॉकर में एआई आएगा क्या औशिक? लॉकर में क्या है एआई? लॉकर से तो एक लॉकर है, लॉकर वो तो है. प्रूफ रखने के लिए कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ बाकी सब रहेगा. आपको बस हाथ में लेके नहीं जानना होगा, आपको ऑनलाइन ही आप बिल्कुल. अप्रूव कर सकते हैं लॉकर. बिल्कुल.
Mansi, what are the applications of AI in urban governance? So first can be in terms of like disaster management, weather forecasting, it can help in terms of hyper localized weather forecasting. Second, Or we can talk about in urban planning or थोड़ा specific, mining. Sure. So in थोड़ा terms specific. of the आप बताइए औशिक, So, urban governance. so urban planning के अंदर में सर सेवरल एस्पेक्ट आ सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट उसमें अंदर, फिर हाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट हाँ, वो ट्रैफिक उसके मैनेजमेंट, अंदर। करेक्ट, चालान से लेकर हाँ डिटेक्ट ट्रैफिक इन्फ्रैक्शंस, ओवर स्पीडिंग, रैश वो ड्राइविंग, हाँ सीट बेल्ट वो नहीं बांधा, अर्बन प्लानिंग के अंदर में सर। ये सब headlights. अर्बन प्लान, ठीक है। तो उसके बाद सेकेंड वुड आपका बी सर पॉट होल्स, वेदर। हाँ डैमेज्ड मैनहोल कवर्स, हम्म, एडवांस्ड इमेज रिकॉग्निशन जो होता है या और उसके बाद सेंसर डेटा एनालिसिस होता है, उससे पता लग जाता है। फिर सर्विलेंस ऑफ द डिजीजेस कि एपिडेमिक कहाँ हो रहा है, कौन प्रोन इलाका है, फॉर मानसी, एग्जांपल डेंगू। हेल्थ केयर में क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ एआई इन हेल्थ केयर? So it can assess or it can track the trend of rising number of diseases or nature of diseases कौन से ज्यादा increase हो रहे हैं. So और that can be one aspect. और It can help in terms of assessing the rising number of patients according to which particular region is seeing more frequency of or more intensity of which kind of disease. Can help फॉर in terms of एग्जांपल फॉर सर preventive एग्जांपल care. फॉर एग्जांपल चेस्ट एक्सरेज वो क्लासिफाई कर देगा इमेज को, नॉर्मल इमेज, कोविड-19 इमेज, निमोनिया इमेज, In screening. ऐसे करके आप न्यूरॉन। सर हाँ जी, सर it also identify the important biomarkers present in the body, करेक्ट। and with that biomarker is certain kind of protein that is present. तो रेटिनोपैथी हो गया, डायबिटिक निकालने पता लगाने के लिए, या फिर हार्ट डिजीज में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो गया, तो सब बायोमार्कर ब्लड के अंदर में होता है, सैम्पलिंग इट कैन आइडेंटिफाई दैट। यही मानसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करेगा, इलस्ट्रेट करो, और कहाँ हो रहा है इंडिया में? So it can help in terms of the quantity of the element that we're using, the chemical that we're using, how much is adequate. So दैट it इज can कॉल्ड be पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। pesticide application. So management of that and इन्फेस्टेशन लेवल कितना है, कितना पेस्टिसाइड आपको डालना है, mm, आइडेंटिफाई कर देगा ये एल्गोरिथम कि भाई इन्फेस्टेशन लेवल कितना है, गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। yes, सो कौन से स्टेट्स में है मानसी? so I'm not aware. फिर भी कोई स्टेट तो बता दो। So pest manager, I think it can be in certain states like Andhra Pradesh or Tamil Nadu. Okay. It is already there in Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Gujarat. Yes. And same thing is with the agriculture. We have discussed in the previous discussion also. In agriculture, there are a lot of ways. Irrigation में है, उसके बाद जो है, ड्रोन we discussed in details. आशिक, असम गवर्नमेंट ने शिक्षा सेतु करके एक ऐप बनाया, डिजिटल अटेंडेंस ऑफ बोथ स्टूडेंट एंड टीचर, yes sir. फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के साथ। सो कैन यू थिंक दैट it will be really working, or it will be a intrusive surveillance? So on the face value it is a very good step, but beyond that much more intervention is required, because sir just attendance is not key to the education system. We have to focus much more on skilling our teachers, training our teachers, as well as basic infrastructure of the education should be there. So adding to that, other key initiative must be taken. Karuna, when we speak about the role of artificial intelligence for Indian industry, so Indian industry mein how AI is going to help in expansion of market? How? So it can help us in the aspect of data, in the aspect of marketing strategies according to the local needs. Okay. Mansi, delivery excellence, sale excellence या productivity में कैसे help करेगा generative AI? So it can help in integrating the entire supply chain. So seamless integration can be one aspect. In terms of sales, a wider reach to far-flung areas can be another thing through digital technology. Sure. हाँ. So it can directly reach the
पर्सनलाइज कंटेंट मेकिंग, पर्सनलाइज सिस्टम को प्रमोट करेगा। करेक्ट। इसी एंगल से मुझे एक बात और पूछनी है औशिक आपसे, व्हाट इज इंडियाज यूनिक, वेरी यूनिक, what is India's very unique approach in the AI landscape, which nobody in the world had done? Any one of you? India का यूनिक बात क्या है? So it is promoting the idea of AI for all. I agree with you, very good. इसको और सिंपल पुट अप करेंगे, इंडिया का यूनिक बात है, इंडिया इज एड्रेसिंग ग्रास रूट लेवल, यही खास बात है। इंडिया इज इंश्योरिंग डिजिटल इंक्लूजन एट ऑल लेवल, बस यही बड़ी बात है। डिजिटल इंक्लूजन इंडिया कर रहा है। करुणा, generative AI is a subset of deep learning, which means it uses artificial neural network, और वो क्या करेगा, लेबल्ड डेटा को प्रोसेस करके लर्निंग मेथड्स क्रिएट करता है। सो जनरेटिव एआई इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। वो डिफरेंट टाइप का कंटेंट, टेक्स्ट जैसे क्रिएट जैसे करता है, वो इमेजरी ऑडियो करता है। इट हैज मेनी स्पेशल पर्पस चैटबॉट टास्क ऑल्सो। तो जनरेटिव एआई हैज अ पोटेंशियल टू गिव सोसाइटी इंटेलिजेंट गाइडेंस। तो बताइए 4 एरिया जहां पर हम जनरेटिव एआई को इंडियन सोसाइटी पॉलिसी में यूज हो सकता है, कैसे हो सकता सर एजुकेशन सेक्टर में यूज हो सकता है है? और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए। हम्म। उसके अलावा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के लिए यूज हो सकता है, एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए। So can we speak more simply, like for example, generative AI can help in what, Mansi? So generative AI, generative is the term. So it can help in generating the audios or in terms of Very good. So or simple writing, first of all. writing. राइटिंग, क्या आपको लिखना है, क्या स्लोगन चाहिए, क्या प्रोग्राम चाहिए, क्या प्लान चाहिए, राइटिंग में करता है। राइटिंग सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इन राइटिंग। राइटिंग है तो रीडिंग में करेगा, फास्ट रीड करता है, आइडेंटिफाई करता है कितनी बार क्या हुआ, फिर चैटिंग में भी आ जाएगा। लेकिन कंसर्न भी है औशिक, व्हाट आर 3-4 concerns of So, generative yes. AI? So generative AI has 3-4 concerns, such as first would be, sir, bias in data collection. Very good. कौन सा Second bias? would be bias is the author bias, authoritative bias. For example, ये क्या होता what है? और भी bias, आप और specific अब करें। हाँ sir, Algorithm. first is data collection, second is use processing of data, that is algorithmic bias. Third would be using of AI to target a certain kind of individual, for example, disinformation, misinformation campaign. hallucination and misinformation. Yes, sir. Too much of data create कर and देते। yes, sir. Job losses, Job loss. gender bias, then plagiarized content, उसको थोड़ी ना मालूम है, वो तो लेके आ जाएगा। And then transparency, it is missing. So fairness, transparency, Answer privacy, last would be the privacy. हाँ. ये सब होना चाहिए। How it is how is the data is being collected or not? It is also one concern. Privacy. Over reliance on it, also. ओवर रिलायंस तो अभी हम नहीं कर रहे हैं और ऐसा है भी नहीं कुछ, लेकिन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस में आ रहा है, लेकिन अभी तो ऐसा क्या बोले, अभी the government are trying to use these generative AI applications, and our question arises how the government should plan to counter the adverse impacts of GAI use. Mansi, how the government should plan to counter the adverse impact of GAI use? So in this, we can promote more of like open data, as we have so like DigiLocker was there in terms of like giving more opportunities for the software developers to identify the bugs and then provide more solutions on that, and then having a comprehensive law like we have European Union AI Act. So यानी कि जो जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो इमेज है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, चाहे वो ऑडियो है, इनसे हमें जनरेटिव एआई डेटा मिल रहा है। Sir, हाँ जी। the 3-4 areas can be done, or if government is trying to do, first is human regulatory oversight of the on the AI. Second would be
making the company self-regulatory with regard to AI system. Mhm. Third would be a transparency in data collection. For example, IT Act, even GDPR, of following GDPR in Data Protection Act 2023. The fourth would be making this system more transparent, how the data is being collected or it is being processed on. So Okay, that's what we can say. I agree with you. Mansi, how do we see artificial intelligence the future of media? So in terms of, for example, as we were talking about the generative AI, so in terms of like generating more of picture, that kind of pictures that we need. So we can type and we can get those types of pictures. In terms of media also, sir, the proliferation of the content can be speeded up. So again, regulating that we are not spreading misinformation or fake is another concern related to media. Mm-hmm. And so in that also, so we are trying to ensure that there should be more transparency that needs to be promoted or more fairness. Okay, Ashik, you want to add something? So, in media, both uh, roles can be played. First, positive role would be helping the journalist to identify the data. Huge amount volumes of data can be processed with the help of AI. Use of thumbnail, even catchy headline can be given. So, Correct. issue will be first would be human element is must be there in journalism, because grassroots level journalism needs human touch rather than AI, because AI runs on reason rather than emotional or even human appeal. Second would be, sir, regulatory oversight over the AI. How much the AI can be used? For example, recently New York Times versus ChatGPT issue regarding the IPR issue. The third would be if AI is being used to target certain kind of audience, for example, paid news or even disinformation campaign through news channel. So it can be removed. At the same time, sir, AI is very important for the system, for the whole media system, because slowly AI is taking the role of what TV or even new age हाँ internet मतलब used to. बिल्कुल सही है. हम कह सकते हैं कि लॉट ऑफ टाइम वाज गोइंग ऑन प्रोडक्शन कंटेंट वेटिंग कि सही है गलत है डिस्ट्रीब्यूशन. डिजिटल स्टोरी टेलिंग इज द फ्यूचर. Yes. And automated books are going to come up. Smart books are going to be there. Smart tools enabled publishing houses are going to be there. इसी कॉन्टेक्स्ट में करुणा, what is the role of what is the transformative, what when we are speaking all this, what is the transformative role of AI in media? ट्रांसफॉर्मेटिव रोल जो हम बात कर रहे हैं मीडिया में, वो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव जब हम बात करते हैं, लाइक इंडिया की इकोनॉमी में हाउ दे आर गोइंग टू एड अप. इफ आई यूज द वर्ड टेक स्टार्टअप्स, what they are going to do and what change is going to be there. Using the data Mm-hmm. in that as बोलिए बोलिए. Oh, she's I think having some issue. आप बोलिए औषिक. The transformative role of AI in media would be uh, it would act as a helping hand to the journalist as well as to the editor. For example, processing of large kind of बिल्कुल a जैसे अभी मैंने बोला ना, quantity. Yes, sir. जैसे सबसे पहले मैंने बोला कंटेंट डिस्कवरी. Content अगर discovery. आप बात करें तो आप कंटेंट एग्जाम की बात थोड़ी ना, और एग्जाम इज बिकमिंग स्मार्ट. एग्जाम इज गोइंग इन द अदर वे. होल वर्ल्ड इज गोइंग इन अदर वे. होल वर्ल्ड इज Yes, sir. यूजिंग लेस सेंसिबल एंड लेस कॉमन सेंस बेस्ड व्हिच इज मोर वेरी टफ. होल वर्ल्ड इज यूजिंग व्हिच इज जनरेटेड. वही जनरेटिव जो हो रहा है, कैसे हो रहा है ये नहीं, डॉक्यूमेंट एनालिसिस करेगा, वो ट्रांसलेशन करेगा, प्रोसेस करेगा. सोशल तो मीडिया पहले कंटेंट क्रिएट yes, हो sir. रहा है. सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, पिक्चर है, Yes. वीडियो है, तो यू नो. पहले सबटाइटल के लिए एक ट्रांसलेटर बैठते थे, अब एक एआई हाँ खुद ही कर लेगा हर एक लैंग्वेज के हाँ अंदर. बिल्कुल. आर्टिफिशियल ऑटोमेटेड राइटिंग है, ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड. राइटिंग है, प्रेस ब्रीफ बनाना है, ऑब्ituary लिखना है, न्यूज लेटर, यस सर. पर्सनलाइज ऑप्टिमाइज डिलीवरी टाइम के साथ, टेक्स्ट का समरी करना है, कंटेंट मॉडरेशन करना है, कमेंट को मॉडरेट करना है किसी को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होना है. सारा काम यही से आप कर सकते हो. क्या आपको चाहिए, दैट इज हाउ इट इज.
तो इसका मतलब है कि इमोशन, डेटा इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट विल इट बी एबल टू रिप्लेस द इमोशन? मानसी? So I cannot replace emotions or the creativity, or I will talk about the So feeling. this is the debate. First is emotion. जी sir. Second is adaptability. Indian civilization, world civilization has taken million of years to evolve. लिटरेचर है इतना, सब चीजें लिखी गई, अर्थशास्त्र लिखा गया, सब कुछ हुआ है, तो क्या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही चलेगा? देन एथिक्स, हमने पहले भी बात की है, and branding obviously, as we have been talking. Yes. So the one area is that because we are saying it has got limited ability to take decisions. That is a limitation. And Ashik, what do you say in terms of social and environmental consequences of AI? जो अभी हमने बात की. The social consequences of AI are huge, sir. It is also enabling features with regard to media or overall social. बिल्कुल सही कहा. Current environment, it is using like Environment, say, guzzler of electricity. It uses huge amount of energy and generates heat at the same time. but at the same time, it can offer solution also with regard to how much of a renewable source of energy can be used and how much the grid can be integrated into it. So it is a cost benefit पहले analysis. बात करते हैं अब, what is the role of AI for citizen services? जैसे इंटीग्रेटिंग AI विद आधार इनेबल्ड सर्विसेज, जैसे मानसी ने एग्जांपल दिया था डिजी लॉकर का, एक Yes. एग्जांपल है वो. और बताइए मुझे सिटीजन सर्विसेज के लिए AI. सर फॉर एग्जांपल एक यूके के अंदर में एनएचएस है, उन्होंने अपना ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म निकाला, इसमें आप रेट कर सकते हैं, आपका डेटा ऑनलाइन रहता है. इंडिया में नेशनल जो हेल्थ कार्ड है, इट कैन बी ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई द इंश्योरेंस और आपका सिस्टम, तो इट कैन बी यूज for the insurance penetration. Other than that, so common service center, commonality of service center, it can be used to rate the video. For example, Kumla में video scorecard, you can rate the video works and its schemes. फाइनेंशियल इंक्लूजन इज एन एग्जांपल. Financial inclusion, yes. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजन सर्विसेज. फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत अच्छा चल रहा है अभी. बट देन फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिजिकल ब्रांचेस कैन नॉट बी, ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांचेस कैन नॉट बी रिप्लेस कंप्लीटली बाय Yes, sir. only AI app. That is not going to work. That is what is happening. Banks are opening up. वो feel, वो idea वो चाहिए. And smart agriculture, as we just said, education we have just discussed, tourism, you know, algorithms हैं, trips plan हो सकता है, itinerary plan हो सकते हैं, drone से आप देख सकते हो. That's very important. Power management in terms of electricity. लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में हमने बात की, गति शक्ति जैसे इतने बड़े प्रोग्राम में बहुत बड़ा रोल है. सप्लाई चेन है, ट्रैफिक कंडीशंस है, वेदर है. देन रूटीन टास्क्स, कस्टमर सर्विस एंड इंटरेक्शन चैटबॉट्स के थ्रू हो ही रहा है, वेदर इट इज एयर इंडिया, वेदर इट इज BSCS, वेदर इट इज इलेक्ट्रिसिटी, वेदर इट इज टेलीकॉम, वेदर इट इज civic services, everywhere this is happening. So that is what we have to keep in mind and we have to bring that. But Ashik, जब हम बात करते हैं स्पेशली चैलेंज्ड पीपल ऑफ आवर सोसाइटी, उनके Yes, लिए sir. AI क्या कर सकता है, दिव्यांग के लिए? Yes, sir. So for Divyang, AI can play important role in identification of, for example, social auditing of the important public areas, if it is PWD friendly or not. Second would be it can offer technological solution. For example, use of reading of the GPS, कि आप चल रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा लेकिन आप सुन सकते हैं GPS को. तो alternative technology can promote with the use of AI. तो दिव्यांग बाकी हियरिंग एड में सिर्फ हेल्प कर सकते हैं सर. ब्रेल नहीं है आपके पास तो आपको पढ़ करके सुना सकते हैं, सबटाइटल रीडिंग कर सकते हैं. तो फिजिकल एक्सेस के लिए किया जाता है, yes, sir. फिजिकल एक्सेस के लिए भी कर रहे हैं. Yes. सो जब हम इतनी सारी बात की, इतने सारी बात ठीक है, बट व्हाट अबाउट द साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस? Yes, sir. AI powered threats are also there. फ्यूचर अटैक्स भी हो सकते हैं. टूल्स कैन बी मैनिपुलेटेड. Yes, sir. डीप फेक हो जाएगा सोशल इंजीनियरिंग के लिए.
ऑटोमेटेड सिस्टम में चेंजेस हो जाएंगे. सो व्हाट आर द यूनिक चैलेंजेस इंडिया इज फेसिंग? मानसी. So here we can talk about the skilled Okay, software one is skill person when shortage. it comes to coding or algorithms. One is skill shortage. What else? So identification of deepfakes is itself a major problem. You have the large digital divide. First of all, इतनी large digital divide है, रोज आता है courier scam, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है इतना कॉमन. जी सर. उसके बाद फाइनेंशियल फ्रॉड्स तो हो ही रहे हैं. साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वर्ल्ड क्लास नहीं है, होना चाहिए. डेटा प्राइवेसी का कंसर्न है. सो यही है, रोबस्ट सिक्योरिटी सिस्टम कैसे बनेगा, सॉल्यूशंस कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, डिजिटल लिटरेसी कैसे बढ़ाएंगे, और स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क हम कैसे करेंगे, थ्रेट डिटेक्शन कैसे करेंगे, फ्रॉड प्रिवेंशन कैसे करेंगे. और ऊपर से ये सब हो जाता तो फिर आइडेंटिफिकेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलता है. कंप्लेन ही कंप्लेन है, आंसर तो आते नहीं है. बताइए आशिक, क्या इलाज है उसका? So, इलाज जैसे basic first would be legislating of the laws. Second would be, for example, IT Act and National Cyber Security Policy. Second would be, sir, capacity building of the institution. For example, I4C as well as 13. Third would be, sir, making the corporate sector stakeholder in the cyber security policy. For example, role of the executive war room with the help of ECI and Facebook, etc., to reduce the disinformation and misinformation campaign during election. And so awareness of the individual, it is required. And so creation of more data centers at the same time as we are focusing upon GCC, Data load, हाँ. data localization. मानसी, पीएम जनमन क्या है? So I think it's related to promotion of the interest of the scheduled tribes. शेड्यूल्ड ट्राइब्स और पीवीटीजीज? So PVTGs, the vulnerable sections of societies. कितने पीवीटीजीज हैं इंडिया में? I think in hundreds, 170 में. So there are 75 PVTGs. 170. आशिक, कितने स्टेट्स और यूटी में पीवीटीजीज हैं? So close to say 18. 18, करेक्ट. 18 स्टेट्स एंड यूटी में है. 75 पीवीटीजी हैं. और पॉपुलेशन क्या है मानसी? 20, I'm not aware. हाँ आशिक, 24 lakh. 28 लाख के 28 आसपास है. lakh. तो मानसी, जो पीएम जन मन, जिसको हम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान कहते हैं, ये करेगा क्या? So it is focusing upon the social justice. No, come on. So social justice in the sense that reaching the last mile when it comes to the public policies or different schemes which are there. No, be very specific. Social inclusion. These are all very big words. करुणा, Care about the specific features. स्पेसिफिक बताओ. तुम तो यूएन तो वाली उनको भाषा में बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा. हाँ, जैसे हाउसिंग, वाटर, करेक्ट. घर, सबको सैनिटेशन, पक्का घर मिलेगा. एजुकेशन. सबको पक्का घर, घर में नल. क्या चाहिए? घर चाहिए, नल चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्किल चाहिए, Health. लोन चाहिए, हेल्थ चाहिए, Handicraft और मोबाइल नेटवर्क चाहिए. तो जो मानसी ने बोला उसका असली रूप है ये. दैट्स व्हाट वी कैन से, because that's the whole point. So coming to connecting theme of food storage and infrastructure, which is a very specific theme. हम इतने important food systems create कर रहे हैं. Food storage infrastructure is a very much key to our economy. So औशिक, क्या आएगा food storage infrastructure में? क्या आना चाहिए उसके अंदर? So food storage, it can include traditional storage as well as storage with the help of cold chain हो गया, या फिर So you cement want to based say, bins. सबसे पहले आना चाहिए warehousing. Yes. Warehouse sir, is warehouse. a vital link in supply chain. Warehouse हो गया, एक हो गया warehouse. मानसी, आप बताइए दूसरा क्या आना चाहिए फूड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में? So in Procurement, warehouse and distribution. so particularly storage में तो we are seeing promoting more of PPPs,
public private partnerships. मेगा फूड स्टोरेज प्लान्स Yeah. कह रही हो, इसका मतलब कि बड़े जो मेगा फूड स्टोरेज प्लान हमें चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट एक एग्रीकल्चर आना चाहिए सर। इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर औशिक मुझे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर हाउस क्रिएट करने हैं तो मैं हाँ सर। लोकल लेवल पे किसकी मदद लूँ? सर लोकल लेवल पर PACS की मदद करेक्ट, लेंगे सर। पीएसीएस। प्राइमरी मानसी, एग्रीकल्चर। पीएसीएस क्या होता है? पीएसीएस मानसी? The Primary Agriculture Credit Society. ओके, इसके अलावा और करुणा क्या होना चाहिए? Sir, FPOs can be there. करेक्ट, एफपीओस भी सर होंगे। DCCB, SS, हाँ। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट एंड नेशनल कोऑपरेटिव बैंक। Then sir, role of कौशिक, NABARD would be इंडिया में टोटल organized. फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है 2021 2022 के आसपास में? Sir, close to 310 million ton. हाँ, 315 मिलियन टन से ज्यादा है। मतलब मानसी, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1950 में, तब कितना मिलियन टन था? So it could be around 50 or less than that. 50 million. 35 मिलियन टन था 30. उसमें। आप समझे? So record high is there. Okay, Ashik, what is called sustainable food system? Yes. So sustainable food system include everything that is required for the food to be transported to the table. For example, it initiation would be from the food resources, farming activity that should be sustainable, then procurement, as well as whole supply chain should be sustainable so that the post-harvest loss can be reduced. And further, sir, use of climate resilient crop or as well as oh, the nutrition requirement should be fulfilled. All things will be under the sustainable food Okay. management systems. Okay. What about the role of जब हम बात कर रहे हैं इसमें करुणा, when we are talking about when 60 to 70% of the grains are stored on the farm, जिसको हम कोठी या अर्दन पॉट्स होते हैं, बड़े बड़े संदूक टाइप होते हैं, ठेका, ये सब में हम स्टोर करते हैं, वो सूटेबल नहीं होते लॉन्ग पीरियड के लिए, और पोस्ट हार्वेस्ट फूड लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए करुणा, कौन सी सेंट्रल बॉडी और स्टेट बॉडी जिसमें रोल प्ले करती है वेयर हाउसेज में? तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन होता है एंड देन स्टेट लेवल पे भी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन होता है। करेक्ट, बात तो बिल्कुल सही है। तो इंडिया ने, मानसी, नेशनल पॉलिसी ऑन हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, एक पॉलिसी आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स। तो इसके इसका जो इम्प्लीमेंटर है कौन है मानसी? तो यही होगा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, स्टेट एंड नेशनल लेवल, व्हाट अंडर अबाउट द डिपार्टमेंट? एग्रीकल्चर एंड सर हाँ जी, सर इसमें NCCF हो सकता है, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, और अलॉन्ग विथ मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ हाँ फूड एंड पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ फूड, हाँ yes, और एफसीआई भी आएगा इसमें। FCI, हाँ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टैट्यूटरी बॉडी। 1964 में आया ये। इट इज द ओनली गवर्नमेंट एजेंसी इंटरेस्टेड विद द मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। कहाँ से उठाया जाएगा, कहाँ दिया जाएगा, ओके। इसके अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, एफसीआई है और बाकी ओन है या फिर नेटवर्क है अपना, उसके थ्रू काम करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इट इज प्लेइंग। द स्कीम्स भी हैं इसकी, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दिस ऑल दे आर डूइंग। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो होता है वो भी यूज आता है, और फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है वो भी यहाँ आती है। तो दीज ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एफसीआई, मानसी, क्या करता है? की अचीवमेंट्स क्या है एफसीआई की? So key achievements, firstly, we can say it has been successful in building the buffer stocks of wheat and rice and achieving food security. But now we are talking about dealing with hidden hunger or the nutritional security. So procurement and making sufficient amount करेक्ट, available. यू आर सेइंग फ्री पहला। फूड ग्रेन्स, पहली बात तो फ्री फूड ग्रेन्स फॉर मोर देन 80 करोड़ इंडियंस। प्रोक्योरमेंट हो गया, जी सर। ट्रांसफर हो गया, हम्म एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिंग फोर्टिफाइड राइस। जी हाँ, PMGKY है ना, बेनिफिशरीज हैं।
हाँ जी। उनको फोर्टिफाइड राइस मिलता है। और जीपीएस बेस्ड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम को ये यूज करते हैं ताकि रियल टाइम आप ट्रैकिंग कर सकें। हम्म, तो जो रोल है एनसीडीसी, जैसे अभी औशिक ने बोला, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नाबार्ड का रोल, नाबार्ड से मदद लेता है उसमें, वो एफसीआई भी आ जाता है, एंड देन कंसल्टेंसी भी आ जाती है, जैसे कि मतलब नैपकॉन्स और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है, एनबीसीसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मानसी, इन सब का एक्टिव कोऑर्डिनेशन करने के लिए करप्शन और नेग्लिजेंट काम हो क्या होना चाहिए? So it can be through technology. Technology is one thing which can integrate them seamlessly and promote transparency and accountability at the same time. So as we're talking about GPS or CCTV cameras when it comes to the PDA shops, or here even AI can also help us. करुणा, व्हाट इज द रोल ऑफ वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी? क्या रोल क्या है इसका? औशिक, आप बताइए। सर सर हम्म। पहला रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो हम्म। स्टैट्यूटरी बॉडी 2007 के अंदर में आता, एंड इट फोकसेस ऑन मेंटेनिंग ऑफ द वेयर हाउसिंग रेगुलेशन, गिविंग द लाइसेंसिंग सही एंड बात। वेयर हाउसिंग मैन, उनका हम्म। स्टैंडर्ड और जो हम्म। उनका परमिट दिया हम्म। जाता है, सो दैट द सिस्टम वुड बी मोर ट्रांसपेरेंट। और ई वेयर हाउसिंग रिसीट उनके हम्म। थ्रू दिया जाता है ताकि एक प्राइस डिस्कवरी में मदद ले सके, एंड रेडिमेटिव सोर्सेस ऑफ द फार्मर। हम्म। तो ये ऑल दीज एक्चुअली। यानी कि बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे। ENWR डिपॉजिटरी होता है, उसके अंदर आप सबसे पहले, जैसा कि अभी बताया, कि आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद जिसने बेचा उसका भी डिटेल आ गया, एक्सचेंज का भी डिटेल आ गया, बैंक में पैसा चला गया, लोन भी लेना है तो वो भी तरीके से होगा, डिपॉजिटर, प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स जो भी हैं उनको जितना मिलना चाहिए उतना मिलेगा, किसानों के साथ ठगी नहीं होगी। तो WDRA, वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास 5,000 से ज्यादा वैलिड वेयर हाउस रजिस्ट्रेशन हैं। तो इट मस्ट बी डबल्ड, इट मस्ट बी इंक्रीज। इसमें APMC का रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का रोल है, FCI का है, बट देन इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अभी मतलब जो सारे वेयर हाउसेज उसमें नहीं आए हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है। और इंस्टीट्यूशनलाइज मैनेजमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। FCI इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप कह सकते हैं कि यू नो जो FCI के जो लॉन्ग टर्म विजन जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि नॉट जस्ट फूड सिक्योरिटी बट फूड सिक्योरिटी विद बिलीफ, फूड सिक्योरिटी a kind of confidence which is generating for all over India, and ultimately it is contributing to GDP growth or contributing to the economic growth. So storage operations जो food grains के हैं वो important है। conventional godowns क्या size के होने चाहिए, उसके बाद कैसे उनका मेंटेनेंस होना चाहिए, कैसे पेस्ट से बचाना है, कैसे आपको टेम्परेचर रेगुलेशन रखना है, कैसे आपको, आप कह सकते हैं कि टाइम से पुराना अनाज बाहर निकालना है। ऐसा नहीं होना चाहिए सड़ा हुआ अनाज आप राशन में दे रहे हैं, अच्छा अनाज आप मार्केट में भेज रहे हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सर से एक इम्पोर्टेंट थिंग्स है प्राइस डिस्कवरी, कि हम्म। कितना अनाज है अभी गोडाउन हम्म। में, ताकि फूड सिक्योरिटी भी हो सके और एट सेम टाइम बफर स्टॉक भी अचीव कर सके, कंज्यूमर सेंट्रिक जो प्राइस ऊपर नीचे वोलेटिलिटी होता है वो भी कम हो सके। हम्म। तो मानसी, हिंदुस्तान में कितनी है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी आपके हिसाब से? So I think it should be somewhere between 12,000 to 16,000. 1 लाख से 1 लाख। ज्यादा PCS एक है। लाख हाँ जी, 1 लाख। आपको इकोनॉमिक्स है इसलिए बताना चाहता हूँ। 15 करोड़ के आसपास फार्मर्स का बेस है उनसे जुड़ा हुआ। इसीलिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इंडिया के अंदर हो सकता है। समझे आप? जी सर। उसमें आपको सोचना चाहिए कि क्या प्लान होना चाहिए। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है, उसने स्टडी भी किया है कैसे फ्यूचर का काम होना चाहिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दे आर द की स्टेट्स। रेलवेज का रोल कैसे होगा, सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट उसमें कैसे होगा, नॉर्थ ईस्ट में कैसे अनाज जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज अ वेरी वेरी सिंसियर, keywords must come up at the time of examination and when we are writing it। हमें जनरल नहीं लिखना है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एक जगह,
उसका रोल है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आएगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर होगा, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग हाँ, इंडस्ट्रीज होगा माइक्रो सर। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आएंगी, आपको वो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग संपदा इंडस्ट्री, योजना आएंगी यस, उसमें। ओके किसान सर। संपदा योजना आएगा। फिर ये आपका जुड़ेगा कंज्यूमर अफेयर से, जैसा आपने बोला, जो एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, या प्रोक्योरमेंट है, तो तीनों जुड़ गए आपस में। ये तीनों हमें लेके आना है एक साथ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू गो बैक एंड ब्रिंग द की पॉइंट। तो हम जब एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं मानसी, तो एज ए डीएम आप क्या करोगे विकसित भारत 2047 बनाने के लिए? आप अपने डिस्ट्रिक्ट में फूड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाने के लिए क्या करोगे? So in terms of storage particularly, we can talk about the important role of startups in this. We can talk about the role of again the traditional community, as we are talking about that their role is very important when it comes to connectivity with the grassroots level. So they can enable us in terms of prevention of the waste of the food grains. ओके, मानसी के अलावा करुणा आप बताइए। She's not there with us. Okay, Ashik. सर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोल्ड स्टोरेज मैकेनिज्म, उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट रहे उस पर फोकस किया जाए। सेकंड वुड बी सर्विसेज, कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए वहां तक। द थर्ड वुड बी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज उसमें। एंड सर फोर्थ वुड बी फोकसिंग ऑन लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कि स्टोरेज के बाद उसको कैसे रेगुलेट करें, उसके लिए कौन स्टार्टअप रहेंगे, और फिर वहां से फिर बाकी फेयर प्राइस शॉप या पीडीएस वहां कैसे पहुंचा सकते हैं, उससे फोकस करेंगे सर। एंड सर फोर्थ वुड बी रिगार्डिंग सर्विसेज, किसान ऐप हो सकता है जिसमें आप कंसल्टिंग दे सकते हैं, विज्ञान किसान विज्ञान बिल्कुल है, जैसे अभी केंद्र हम बाकी सब। स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, तो एक मिट्टी हाँ कूल हाँ, रेफ्रिजरेटर है, मिट्टी से बना होता है, लेकिन उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं विधियां होगा बनती सर। हैं। हाँ वो दूध भी, पानी भी, और फ्रूट्स वेजिटेबल 5 से 7 दिन तक आप उसमें स्टोर कर सकते हो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही रू कार्ट, भुवनेश्वर में एक रू कार्ट है, तो रू कार्ट के अंदर भी आपको पानी से चलता है वो, और उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स आप स्टोर कर सकते हो और शेल्फ लाइफ इंप्रूव कर सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स विच यू रिक्वायर, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस हमें कम करने हैं समय आने के साथ साथ, आईसीटी को हमें बढ़ाना है। सो दिस इज व्हाट वी कैन डे, वी हैव टू डू। सो मानसी, इंडिया जब हम बात करते हैं फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए, तो आप उसके अंदर मतलब क्या क्या व्हाट आर योर 4 की इंटरवेंशंस फूड बास्केट बनने के लिए? वर्ल्ड सप्लायर इंडिया कैसे बनेगा? So here we can firstly there would be important role of the integration of the supply chain with the global वो value तो है chain. ही, सप्लाई चेन तो So जब करेंगे ना, export, आप क्या सप्लाई करोगे ये तो बताओ। so staple food grains would be one thing. लाइक Second, sir, like wheat can be one. नहीं नहीं नहीं, वीट कोई नहीं खाने जा रहा, आप भी थोड़े टाइम में छोड़ दोगे। कौशिक आप बताइए क्या सप्लाई करेंगे? तो पहले सर Sure. पहले तो आप ग्लोबल लीडर बनेंगे ड्यूरिंग टाइम ऑफ क्राइसिस, आप पहुंचा सकते हैं वीट ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट। सेकंड वुड बी सर फोकसिंग ऑन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कि जो नहीं, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट है आप मैं उसको बात प्रमोट करना करें। चाह रहा हूँ, आप क्या सप्लाई करोगे? आप लोग वीट के पीछे क्यों पड़े हुए हो? भारत तो Sir, में क्या सप्लाई सर टर्मरिक हो गया, स्पाइसेस हो गया, मिलेट, फिर मिलेट्स, मिलेट, हाँ हाँ yes. मिलेट, मिलेट करेंगे सबसे पहले। एप्पल्स हो गया सर बाकी। वर्ल्ड का जो है मतलब इतना ज्यादा प्रोडक्शन हम मिलेट का करते हैं, और हम मिलेट नहीं सप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? मिलेट इज पार्ट ऑफ सुपर फूड बकेट इंडिया के लिए। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भाई इंडिया मिलेट्स का। पर्ल मिलेट और सोरगम में तो हम नंबर 1 है, 19% ऑफ द वर्ल्ड। बताइए, केरला, और केरला बोलो, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्टर्न गुजरात, इंडिया में तेलंगाना, मोस्टली मध्य सर। प्रदेश, उत्तराखंड, 10 स्टेट्स जो है वो 98% का मिलेट प्रोड्यूस करते हैं मानसी। आप बोल रहे हो इधर उधर, आप गेहूं भेजने की बात कर रहे हो यार। गेहूं हम खुद बचना चाहते हैं। हमने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खुद ये बोला था, हाई यील्डिंग वैरायटी करेंगे हम, बायो फोर्टिफाइड मिलेट्स हम भेजेंगे। एक हो गया मिलेट्स, दूसरा बोलिए क्या बात हो सकता है? दूसरा क्या है, दूसरा इंटरवेंशन? मिलेट आ गए मेरे पास, तो मैं उनसे कुछ बनाऊंगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्या समझे? जी सर. मैं उनसे कुछ बनाना चाहूंगा ना, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मेरा दूसरा इंटरवेंशन होगा।
अब मैंने बना भी दिया और फूड प्रोसेसिंग मैंने, आई हैव प्रिपेयर्ड माय पैकेट्स एंड एवरीथिंग, नाउ आई नीड सप्लाई, फूड सप्लाई चेन पे जाऊंगा मैं। सप्लाई चेन को और रॉबस्ट करने के लिए मैं पैकेजिंग और स्टैंडर्ड की बात करूंगा। की इंग्रेडिएंट है, फूड वर्ल्ड बास्केट स्टैंडर्ड ही नहीं होगा, कुछ भी आप बना रहे हो। जैसे अभी डेयरी आइसक्रीम के अंदर कभी कॉकरोच मरा हुआ निकलता है, समटाइम वी आर फाइंडिंग समथिंग एल्स, समटाइम मिलेट मिल वो सेंटीपीड या कुछ भी आ रहा है, स्टैंडर्ड्स की हम बात करेंगे। तो ये चार चीजें जब होंगी तो वी बिलीव कि हम जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो अभी औशिक ने बोला, वैल्यू चेन डेवलपमेंट के लिए ओडीओपी की जो बात हुई, वो जो है वासुदेव कुटुंबकम ओडीओपी, प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, पीएमएफएमई जो स्कीम की बात हो रही थी, वो हम जो है उसको सही रास्ता दिखा पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसा मैंने बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशिक, अंडमान निकोबार अगर आपको भेज दिया जाए तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आप कौन सा प्रोडक्ट एक वहां का लेंगे? आप जल्दी जल्दी बोलिए। सर कोकोनट। कोकोनट। मानसी, अगर आपको आंध्र प्रदेश भेजे जाए तो क्या प्रोडक्ट लोगे आप? The product. हाँ, प्रोडक्ट। So वैसे तो we say biryani is famous to rice. बिरयानी, ओके। Andhra Pradesh. आई एम टॉकिंग अबाउट फूड प्रोसेसिंग का Product. प्रोडक्ट। फूड प्रोसेसिंग के लिए मेजर प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बिरयानी कहाँ से आ गई? So इसका स्पाइसेस है, ग्राउंड नट है, सर मैंगो है, टोमेटो है, ओनियन है, सर कैशू नट है। पाम ऑयल और अरुणाचल प्रदेश से औसिक आप क्या प्रॉन भी लेंगे? सर। अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल आप प्रदेश। क्या लेंगे अरुणाचल प्रदेश से? सर अरुणाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर से एप्पल हो गया, बाकी सब ऑरेंज है, कीवी है, ऑरेंज की लार्ज भी। कार्डेमम है, टर्मरिक है। मानसी, असम से क्या लोगे? so citrus fruits and सिट्रस फ्रूट्स। टी सर फेमस। जैक फ्रूट ले सकते हो, राइस। बिहार से क्या लेंगे औशिक? सर मखाना। खाना लेंगे। छत्तीसगढ़ से क्या लोगी मानसी? तो छत्तीसगढ़ तो नहीं बता सर, छत्तीसगढ़ तो अरे दोगी यार, राइस है, पपाया है, राइस है, टमाटो है, टैम। महुआ है। गुजरात से क्या लेंगे करुणा? अभी सर ड्रैगन फ्रूट फेमस अभी हुआ था गुजरात में। झारखंड से क्या लेंगे औशिक? झारखंड से सर अरे हनी है, पोटैटो है, एंड चिरौंजी है। सर हनी, इट्स अ वाइल्ड हनी, इट इज फेमस वाइल्ड हनी। बाकी टैमरिंड। उत्तर प्रदेश से क्या लोगी मानसी? फिर अगेन स्टेपल्स ही आएंगे, wheat and rice. व्हीट एंड राइस। पेठा है, ग्राउंड नट है, जैगरी सर, मैंगो है, बाकी सब गुआवा है, ओनियन है, जैगरी है। उत्तराखंड से क्या लोगी मानसी? So horticulture, fruits, apples. नट्स, वॉलनट हो जाएगा सर। टर्मरिक है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा और आपको लाना पड़ेगा, और हम लाएंगे तभी जो है विजय की तरफ बढ़ेंगे। आप कोशिश करेंगे तो आप आगे बढ़ चुके हैं। हमने बात की फूड प्रोसेसिंग, और हमने उस पर भी फूड स्टोरेज पे इतनी डीप चर्चा की। आई बिलीव दिस इज गोइंग टू गिव मोर इनसाइट्स, मोर क्लैरिटी, and ultimately culminating towards success. Thank you very much. Wishing all of you all the best. Thank you so much.